السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیز. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، ضمنی الیکشن کی نرما نرمی کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر آپ کی خدمت میں آئیے جی. اس کی نرما نرمی یار نرما نرمی ہوتی ہے ضمنی الیکشن میں، گرما گرمی ہوتی ہے مین الیکشن میں. بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. مین الیکشن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور ضمنی الیکشن ایسی ہے جیسے حاجی سردار میموریل ٹورنامنٹ. کافی فرق ہے. خیر ناظرین، یہ میں تھوڑا سا سبق دے رہا تھا بچوں کو. اس کے بعد پیش خدمت ہے خبروں پر تبصرہ. سوری، میں بچوں کو کہہ کہ یہ آدھا بزرگ تو نہیں لگ رہا. ناظرین، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اچھا جی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مستحکم اور مضبوط پاکستان چھوڑے جا رہا ہوں. او جے مجان دی جگے نے ٹور جان تے ایک دی تھندو جم دی جگیا. او جگیا ہو ٹور پردیس گیوں بوا بجیا. تو رو 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 تو رو. اس گانے کا خبر سے کیا تعلق ہے؟ یار یرداری صاحب جا رہے ہیں تو مجھے وہ یاد آ گیا اس لیے. ویسے یرداری صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مضبوط اور مستحکم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار کہ تھوڑی دیر اور رہ جاتے ہیں، مزید مستحکم کر جاتے پاکستان کو. بالکل ٹھیک بات ہے تمہاری. اگر تم اپنے چہرے سے تھوڑی سی طنز کٹ کر لو تو. کوئی طنز نہیں کی میں نے یار ہمیں زیادہ شوخی ہو کے نہ کہا کرو اس طرح کی باتیں. یار میں سیریس کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ اور کیا مضبوط ملک آپ لوگوں کو دیکھے جائے کہ دیکھو یرا ملک کا حال. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر اور رہ جاتے، اور مضبوط کر جاتے یار، اور مستحکم کر جاتے. ایم ایمان سے جلدی کر رہے ہیں. اگر اس کو یرا 2-3 ارب کا اور ٹیکہ لگا جائے نا تو یہ بہت طاقتور ہو جائے. یار ٹیکہ طاقت کا بھی ہوتا ہے بھائی، یاد ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو. یہی طاقت کا ایک آدھ ٹیکہ اور لگ جاتا، 2-4 ماہ اور رہ جاتے زرداری صاحب، تو ہم اور جرمنی برابر کھڑے تھے. اور یار جرمنی کیا ہے؟ تم نے ابھی ایتھوپیا نہیں دیکھا ہوا. اتنے بڑے ڈانڈے ایتھوپیا کے. بادشاہ بندے ہو تم. یہاں تھوڑی سی اگر محنت کی جاتی تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بس کرو بس کرو بس کرو. میں بڑا نہیں بولنا چاہتا. میں تو طنز کر رہا تھا، تم جو چلاکی کر رہے ہو وہ سمجھ نہیں آ رہی ناظرین کو. اس طرح کے ان پڑھ بندے جو ہیں نا، ان کو معاملے کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہے کیا اصل معاملہ. اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں یرداری صاحب. انہوں نے مستحکم اور مضبوط کر دیا ملک کو. مضبوط تو مربوط نہیں، اور کیا کہنا چاہیے، ہنوت کر دیا. نہیں ہنوت غلط ہے میرا خیال ہے. ہنوت تو میرا خیال ہے وہ نہیں ہوتا جو بیچ میں سے سارا کچھ نکال کے وچ توڑی بھر دیتے ہیں. مضبوط ہی رہنے دے. مضبوط ہی رہنا. تو یہاں تو توڑی بھرنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کی کسی نے. اگلی خبر پڑھو. کیا یار، کینیڈا میں ایک تحقیق کے مطابق پرندے شاہراہوں پر لگے حد رفتار کے سائن بورڈ نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. واہ 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 واہ. لا جی آج میری ٹینشن ختم ہوئی ہے. میں ایمان سر 3-4 دن اس پہ بحث کرتا رہا ہوں آڑو گرنیڈ اور نہیں میں کینچی کے ساتھ. میں نے کہا یار یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پرندہ اتنی دور اڑ جائے اور واپس وہ گھر کیسے پہنچ سکتا ہے. اس کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی کدھر کو جانا ہے اور آگے کدھر کو نہیں. اور وہ مجھے کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی پہنچتے ہیں واپس، بڑے بڑے دور دوسرے شہروں سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. آج پتا چلا کہ یہ پرندے سائن بورڈ پڑھ لیتے ہیں. پتا چل جاتا ہے ان کو کہ کالا شاہ کاکو 28 کلومیٹر رہ گیا. یار یہ تو بڑی فائدہ مند بات ہے. میں نے اپنی گھر کی پچھلی دیوار کے اوپر بورڈ لگا دینا، یہاں ہارن بجانا منع ہے. جب دیکھو ادھر کہاں بیٹھ کے کہاں 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 کر رہے ہوتے. یہ ان کے ہارن سے صرف میرے کان ہی خراب نہیں ہوتے، 1200-1300 روپیہ بھی پڑ جاتا ہے مجھے. یار مہمان آ جاتے ہیں جب یہ کہاں ہارن بجاتے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے میرے گھر مہمان میرے سسرال کے علاوہ آتا کوئی نہیں. نہ ان کو بندہ ہی لے سکتا ہے. اور جو میرے ویڑے میں گلے کپڑے ٹانگنے والی تار لگی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر میں نے بورڈ لگانا ہے کہ کوڑا کوڑا دان میں پھینکے.
रोज उधर चिड़ियां बैठ के बिठे कर देती। कूड़ेदान की क्या जरूरत है, सीधा सीधा वहां पे लिखवा दो नो पार्किंग, ताकि परिंदे बैठे ही ना। यार ये तो वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट मैन। थैंक यू। वाकई अगर नो पार्किंग का बोर्ड लग जाए तो कोई चिड़ी उधर पार्क ही नहीं होगी, स्यापा मुक्का। यार वैसे अगर ये चिड़ियों को पढ़ने का शौक है तो फिर तो मेरा ख्याल है किसी पीपल के ऊपर लाइब्रेरी भी बनवा देनी चाहिए, ताकि आके उधर परिंदे बैठ कर तालीम हासिल करें। ये जो सवेरे सवेरे चिड़ियां दरख्तों पे बैठ के हंस रही होती हैं, ये कोई लतीफों की किताबें पढ़ के आती हैं। रेंजर्स एहलकारों ने इलेक्शन ड्यूटी के दौरान उम्मीदवारों की पेशकश पर माजरत करते हुए कहा, हम दौरान ड्यूटी कुछ नहीं खाते। बहुत अच्छे। ये देखो ये इलेक्शन उम्मीदवार भी सियासतदान है ना, सियासत लड़ा रहे हैं, रेंजर वालों को सुलह मार रहे हैं खाने की, जिन पे इनको यकीन है कि ये तो ड्यूटी पे खाते ही नहीं है, पर पुलिस वाले भी ड्यूटी पे खड़े होंगे, उनको सुलह मार के देख देना। ये रेंजर वाले अगर ड्यूटी पे खाते कुछ नहीं तो पुलिस वालों को तो कार भूख लगे तो वो ड्यूटी पे आ जाते। वो बेचारा दिल में सोच रहा होता कि थाने चल के किसी मुलजिम को कहता हूँ खाना लेके आओ, उसको मेन्यू ना भी लिखाई तो उसने फौरन खुद ही बेचारे ने कुकड़ फिश कोरमा ले आना है। लो जनाब, लो सब खाओ, जो मर्जी खाओ जनाब। नाल वड्डी 1.5 लीटर वाली बोतल लैके उन्हें आनी, बेगम ने घर च की खवा दे। ये केड़ी 302 के अंदर हुई है बेचारी, इन्हू की पता होवे 302 केड़ी दफा हुंदी है। इन्हू तो कही मैं थाने च लेंदे, को कहंदी है दफा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार अपना जुनैद सलीम साहब, सॉरी मिस्टर भी कहना चाहिए, चलो कोई गल नहीं, मिस्टर मैं ना भी कहूँ ना तो तुम दिल में लगा लिया करो मिस्टर साहब। अक्सर तुम नहीं कहते यार। चलो यार मैं इको दफा मिस्टर 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 कह देता हूँ, पास रख लो ना। जब भी मैं बगैर मिस्टर के जुनैद सलीम कहूँ तो मैं साथ फिट कर लिया लगा के तो फिट कर लिया करो। जबरदस्त। बल्कि मैं तुम्हें शापर भर के भी मिस्टरों का दे दूंगा। यार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी एक खबर चली थी टीवी के ऊपर और इतला मिली है मुझे, अब मुझे करेक्ट याद नहीं, उसका मतन कुछ यूं ही था कि कोर्ट ने कहा है, अदालत उज़्मा ने कहा है कि ये जो वाकया हुआ है सिकंदर वाला, उस पे उन्होंने पैमरा वालों से पूछा है कि आपके पास कोई ऐसा कानून नहीं कि आप अगर कोई चाहे चीज के मीडिया ना दिखाए पब्लिक को तो उस वक्त आप चैनल्स बंद कर दें। हाँ, बल्कि सेक्रेटरी आईटी को हिदायत की गई है कि वो ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व करें कि पैमरा के पास ये इख्तियार हो कि वो जब चाहे तमाम चैनल्स की नशरियात बंद कर दे। और इस पर पाकिस्तान के जो सहाफती हल्के हैं उनमें एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके कई एंगल हैं। नहीं, मैं आपसे इसीलिए गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, बीइंग जर्नलिस्ट, एन तो नहीं इधर लगता, ए लगता है, AEIOU हो तो फिर एन लगता है। हमें हंसना ना शुरू कर दिया करो। जब मैं अंग्रेजी सिखा रहा होता हूँ तो मेरी तबीयत मास्टर यूनुस साहब वाली हुई होती है। मैं आपसे सीख रही हूँ अंग्रेजी। ये बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये अगर हो गया इस तरह के जब मर्जी पैमरा वाले चाहें बंद कर सकें ये चैनल्स आपके, तो ये पैमरा तो गवर्नमेंट के अंडर आता है अदारा। मैं समझता हूं कि जो अदालत उज़्मा है वो तो ये महसूस कर सकते हैं और ये इंसाफ कर सकते हैं कि चलें ये चीज दिखाएं या ये ना दिखाएं। जब ये चीज गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी तो गवर्नमेंट मुखालिफ कोई मुजाहरा, कोई जुलूस जलसा, कोई अपोजिशन की बात या कोई बयान जो है वो जब मर्जी फिर गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये बंद कर दो, ये जलसा ना दिखाओ, हमारे खिलाफ ये स्ट्राइक ना दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी हैं या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है, मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट की नीयत तो सीधी सीधी ये नजर आ रही है कि मीडिया को ऐसे मनाजिर दिखाने से इज्तनाब करना चाहिए जिससे कौम में इंतशार फैले, नाउमीदी की कैफियत पैदा हो। और ये बहुत हद तक मेरा ख्याल ठीक मामला है, लेकिन उसके लिए जो मतलब मैकेनिज्म इवॉल्व किया जा रहा है
کہ پیمرا کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ جب چاہے تمام چینلز بند کر دے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے بڑی گرما گرم قسم کی، اور فوری طور پر جو ذہن ہے وہ چند سال پیچھے چلا جاتا ہے کہ جب اسلام آباد کی کیا پورے ملک کی جو شہروں کی شاہراہیں تھیں وہ وکلاء، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے جب جلسے جلوس ہو رہے تھے اور ان پر پولیس لاٹھیاں برسا رہی تھی، اور عدالت کی آزادی کے لیے عدالت کی بحالی کے لیے، انہی ججز صاحبان کی بحالی کے لیے ایک عظیم جدوجہد جاری تھی، اور اگر اس وقت پیمرا کے پاس یہ اختیار ہوتا یا پیمرا کے پاس ایسا میکانزم ہوتا کہ وہ تمام چینلز ایک بٹن کے آف کرنے سے تمام چینلز بند کر دیتا، تو کیا اس وقت کے مشرف صاحب، صدر پرویز مشرف، اس وقت فوری طور پر پیمرا کو یہ آرڈر نہ کرتے؟ لازماً ضرور کرتے. اور اگر وہ چینلز پہ نہ دکھایا جاتا تو اس تحریک میں اتنی فورس پیدا نہ ہوتی، کبھی بھی نہ ہوتی. خود عدالت عظمیٰ یہ اقرار کر چکے ہیں، بار بار میڈیا کا بھی بڑا رول رہا، بار بار اس بات کا عدالت کی آزادی کے لیے، اور میڈیا، اور دوسری طرف میڈیا بھی عدلیہ کو بار بار اپریشیٹ کرتا رہا ہے کہ ہماری آزادی کے لیے عدلیہ کا جو رول ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اور عدالت کو اپنی اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہنا چاہیے. یہ جو سکندر والا واقعہ ایون اور بھی کتنے سارے واقعات ایسے ہیں جس میں میرا خیال ہے کہ میڈیا کے وجہ سے فائدہ بڑا ہوا ہے. یہ جو اب سکندر والا واقعہ ہے، میڈیا، ہمارا چینل الحمدللہ وہ حافظ آباد اس کے گھر پہنچ گیا، ادھر سے سارا پوچھ گچھ شروع کر دیا، پر پولیس نہیں پہنچی تھی، چینل والے پہنچ چکے تھے. بنیادی بات یہ ہے کہ قوم کو بہت اعتراض کیا جا رہا ہے میڈیا کے کردار پر. کچھ جزیات ایسی ضرور ہیں اس سارے واقعے کی کوریج پر جس پر اعتراض کی گنجائش نکلتی ہے لائیو کوریج کے حوالے سے، لیکن اگر اس واقعے کی اس طرح لائیو کوریج نہ کی جاتی تو کیا عدلیہ سمیت پوری قوم کو پتا چلتا کہ ہمارا جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس میں کتنا بڑا لیپس ہے، یعنی یہ کہ کتنے بڑا اس میں سقم ہے کہ ایک شخص نے 2 بندوقوں کے زور پہ پورے ملک کو یرغمال بنا لیے. میرا خیال ہے کہ اس کو صرف اس اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میڈیا نہ دکھاتا، میڈیا کیوں نہ دکھاتا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. پوری دنیا میں مہذب قوموں میں، ترقی یافتہ قوموں میں یہ ہوتا ہے، جب بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی شخص اگر کثیر المنزلہ عمارت پر چڑھ کر خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کیمرے آف ہو، کیا ہمیشہ وہاں پر ٹی وی چینلز فوراً پہنچتے اور لائیو کوریج آپ کی یہ مثال غلط ہے. آپ نے مہذب اور ترقی یافتہ قومیں کہا، ان دونوں کیٹیگریز میں ہم تو نہیں آتے. اچھا، میرا پتہ کیا ہے، میرا ایک اور پوائنٹ ہے، میں یہ میرے سن لینا. جی ضرور ضرور. مہذب قوم کا ہم نے ویسے اس دن مظاہرہ نہیں کیا. میں معافی چاہتا ہوں کہ جو چیز نوٹس کرنے والی ہے وہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو وہ 50 60 100 بندہ کھڑا تھا، مطلب ان کو پیچھے کرنے کے لیے یا ان کو ان سے آنکھ اوجل کرنے کے لیے وہ منظر جو تھا، قناعت لگائی گئی، پھر وہ قناعت کے آگے آ گئے. یار مہذب ہم کہاں کے رہ گئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا. باہر جو لوگ یہ منظر دکھاتے ہیں، میڈیا تو دکھا رہا ہوتا ہے، مگر ساتھ میڈیا پہ یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں وہ لال ریبن باندھ دیتے ہیں ہم نے ذکر اس کو کراس کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہو سکتی. اب انتظامیہ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ان لوگوں کو اس جائے وقوع سے دور رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے، کیونکہ سکندر کے پاس لیوریج کیا تھا، وہی وہاں پر موجود لوگ تھے نا، جس کی وجہ سے آپریشن میں بھی تاخیر ہو رہی تھی. میں نے ایک افسر سے بات کی، میں نے کہا جی ادھر سے بندے کیوں نہیں ہٹائے. آگے سے مجھے کہتا بھائی جی اگر ادھر ہم ڈانگ چلاتے نا تو پھر میڈیا دکھا رہا تھا، لوگوں نے کہنا تھا جی بڑا ظلم کیا پولیس پہ. میں نے کہا یار میری بات سنو، جب وزیر اعظم یا حکومتیں آپ لوگوں کو آرڈر کرتی ہیں، وہ یرائے اللہ جب آرڈر کرتے ہیں، اس وقت آپ کب باز آتے ہیں جی ڈانگ پھیرنے سے؟ اس وقت تو کھلے ہوئے سارے ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ پھر بھی نہیں باز آ رہے. صحیح ہے بالکل. تو جب ملک کی عزت کا مسئلہ تھا اس وقت بھی آپ ڈانگ پھیر، ہم میڈیا ان کو پیچھے ہٹاتے. اگر وہاں پر جو کراؤڈ تھا اس کو ہٹانے میں اگر پولیس فورس استعمال کرتی اور پھر میڈیا پولیس کو کرٹیسائز کرتا تو میرا خیال ہے کہ ہم کبھی بھی میڈیا کی حمایت نہ کرتے. میڈیا کا غلط اقدام ہوتا اگر میڈیا اس اقدام کو کرٹیسائز کرتا. تو سر اس کا حل کیا ہے پھر؟ حال سیدھا میرے ذہن میں جو آتا ہے، میں تو نالائق سا آدمی ہوں مگر ظاہر ہے میری سچے ہو
क्या मतलब? यार स्टूडेंट नहीं आगे से ये कहते मास्टर को कि हाँ जी आप सही कह रहे हैं। यार तुमने कहा मैं नालायक हूं, मैंने कहा सच्चे भी हो। नहीं, मास्टर तकल्लफन कहते हैं कि मैं तो नालायक आदमी हूँ, हमारे जो बुजुर्ग होते थे ये इस तरह की बात करते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक ये है कि बॉडीज ऑलरेडी बनी हुई हैं ऐसी कि अगर कोई ऐसी चीज चैनलों ने दिखाई है या किसी एक चैनल ने दिखाई है जो नहीं दिखानी चाहिए थी, तो पैमरा उस बॉडी के पास जाए, जाके अपना केस पेश करेंगे जी इन्होंने वायलेशन की है। हाँ, ये नहीं दिखाना चाहिए था। उधर चैनल वाले जाके अपना मौकफ पेश करें, पैमरा वाले अपना मौकफ पेश करें। अगर पैमरा का मौकफ ठीक है तो उसको सजा मिलनी चाहिए चैनल को या फाइन होना चाहिए, ये बाद में डिसाइड करना चाहिए। लेकिन वक्त ये से मेरा पहले ख्याल है। पैमरा को ये इख्तियार दे देना, इस पर डिबेट हो रही है कि पैमरा जब चाहे पूरे मुल्क में जितने बीसियों की तादाद में चैनल्स मौजूद हैं उनकी नशरियात जो हैं वो एक स्विच ऑफ करने से बंद कर दे और जब चाहे खोल दे। ये पैमरा को इख्तियार देना, इस पर बड़ी गर्मा गर्म डिबेट हो रही है। नहीं, मैं तो नहीं इस डिबेट में शामिल, चूंकि हमें भाई मैं नहीं इस तरह की सेंसिटिव बातों में मैं नहीं आता। अच्छा, इस हवाले से जो एक बुनियादी खदशा मेरे जहन में है वो ये है कि अगर पैमरा को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो अपने तय ये फैसला करके और मुख्तलिफ चैनल्स की नशरियात को बंद कर दे, तो फिर होगा क्या? होगा ये कि अब मुल्क में एक बिल्कुल मसावी मीडिया, सोशल मीडिया के नाम से भी मौजूद है, जो तवाना से तवाना तर होता चला जा रहा है, लेकिन वहां पे मुख्तलिफ किस्म की जब आप इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं देंगे, लाइव कवरेज पर अपने तौर पर पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगे, तो फिर फेक किस्म की वीडियो सर्कुलेट करेंगी, फिर गैर मुसद्दिका इतलात जो हैं वो सोशल मीडिया में गर्दिश करना शुरू कर देंगी। उसका क्या इलाज? बिल्कुल ठीक है। किसी बीच में से छोटा सा शॉट जो जिसकी समझ ही ना आए कि इसका आगा पीछा क्या था, और वो शॉट जो है वो बड़ा भयानक हो या गलत हो या ना दिखाने वाला हो, वो दिखा देंगे, सोशल मीडिया पे दिखा देंगे। अब तो सोशल मीडिया, अल्लाह माफ करे, हाय हाय हाय, सोशल मीडिया है क्या? तुम 2 मिनट इधर, अब मैं नाम नहीं लेता, एक पार्टी के मुतल्लिक गल करके दिखाओ, फिर तुम्हें पता चले कि सोशल मीडिया होता क्या। तो क्यों करनी है तुमने पीटीआई, सॉरी, किसी के खिलाफ बात? लो देखो कर भी गया है, देखो जरा सोशल मीडिया, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया भी आखिर एक इंसान होता है। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रही। बड़े बड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? आलम चन्ना, क्रिस गेल, बॉलर मोहम्मद अरफान, ये बड़े बड़े। अजीज साहब गुस्से में शुरू हो गए आप तो। इसने क्या मखाल बनाया हुआ, बीच में से मेरी मुखबरियां खाई जाता है, अब तो थैले में से डुलने लग गई है। ओए होए होए होए, हद हो गई है यार। मुखबर इसका कहीं पता नहीं जेब काटता हुआ पकड़ा गया। बताओ यार, यार अल्लाह से तौबा किया करो। इतना वो अच्छा आदमी है जो मुल्क और कौम के लिए सोचता है, और तुम्हें ऐसी ऐसी चीज निकाल के देता है कि लोग हैरान रह जाते हैं, और कई जगहों से अरबों रुपए के फायदे भी मुल्क को होते हैं, वायलेशन रुक जाती है। मैं भी यही कह रहा हूँ, लोगों की जेबों से मुखबरी निकालता होगा। जेब तो कह रहे हो कि जेब में काटता है, वो जेब में काट के मुखबरी निकालता होगा। ये कहो ना साथ, ये ना कहो, वो ऐसे लगता है कि सीधा जेब में से पैसे निकाल के या मोबाइल निकाल के दौड़ जाता है। चलें जल्दी से मुखबरियां शुरू करें। लो जी, जो पहली मुखबरी पेश कर रहा हूँ अजीबो गरीब सी और हंसी वाली है। अच्छा? एक भाई साहब हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जनाब असजद इम्तियाज साहब। अच्छा। लो जी, असजद साहब जो हैं, इनके पास माशाल्लाह पहले 6 ओहदे थे, कल इनको 7वां और दिया गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने कहा कि भाई जी कल ले लूंगा, आज मैं शापर नाल नहीं लेके आया, क्योंकि इतने सारे ओहदे तो शापर में ही डाले जा सकते हैं ना, ये फाइल में तो डाले नहीं जा सकते। 7 ओहदे, तौबा। जी जी, एक बंदे के पास है। My God। पहले उनके पास है वैसे ये चेयरमैन फेडरल
फ्लड कमीशन, अच्छा, फिर साथ चेयरमैन इरसा भी हैं, उसके साथ चीफ एग्जेक्टिव मुतबादल तवानाई बोर्ड भी हैं, वाओ, उसके साथ ये डायरेक्टर NTDC भी हैं, माशाल्लाह। उसके साथ ये वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं और उसके साथ डायरेक्टर एस्को भी हैं। ओह, और हंसी वाली बात इसमें यह है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर डाली गई हुई हैं या इनके पास हैं। तो मशूब ने पिछले दिनों छुट्टी की दरखास्त दी हुई थी। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन ने फ्लड के दिनों में छुट्टी की दरखास्त दी। जी, उन्होंने कहा जी कि भाई जी इधर पानी जरा ज्यादा आ गया है, मुझे छुट्टी दे दे, मैं जरा किसी ऊंची जगह वाले मुल्क से हो। शायद यार वो उस मुल्क में देखना चाहते हो कि वो लोग किस तरह सैलाब का मुकाबला करते हैं। शायद यू आर राइट। देखो ये कितनी जल्दी बड़े बंदे के साथ मिल जाता है। डिश लाजी जो दूसरी मुखबरी पेश खिदमत कर रहा हूं वो ये है कि मुखबर मेरा कहता है कि मुबैना तौर पर एक बात कर रहा हूं। सेब हो जाता ना बंदा ये किसी तगड़े बंदे से बचने के लिए। कहता कि भाई जी आपने ये महसूस नहीं किया कि जब से ये इनामी बॉन्ड के इनाम निकलने का सिलसिला कंप्यूटराइज्ड हुआ है, यानी कंप्यूटर ये इनामी बॉन्ड का इनाम निकालता है, उस वक्त से कभी भी बड़ा इनाम माड़े बंदे का नहीं अब निकला। इन बेचारों को 500 हजार वाले इनामों पे टाल देते हैं। सही। और जो बड़े बड़े इनाम होते हैं उनके पैसे बड़े बड़े लोग आपस में तकसीम कर लेते। बड़े बड़े से तुम्हारी क्या मुराद है? यार आलम चन्ना, क्रिस गेल, बॉलर मोहम्मद अरफान, ये बड़े बड़े। तो नहीं मैं नहीं मानता। फिर तुम कहते लंबे लंबे, बड़े बड़े तो ना कहते। यार ये जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश करता है और जेलस होता है ये कि ये क्यों मुखबरियां सुना रहे। इसको मना करो। हद हो गई है यार तुम्हारे वाली। अनामी बॉन्ड करोड़ों अरबों के निकलते हैं और तुम ये हुए हो। कोई छोटी मुखबरी नहीं है ये अगर जरा गौर करे कोई दानिशवर आदमी तो उनको महसूस होगा कि यार वाकई ये दानिश की बात है। बिल्कुल। कि जब से ये इनामी बॉन्ड कंप्यूटर के हवाले किया गया है, जो कंप्यूटर को फीड करे वो निकाल के बाहर फेंक देता ऐसा ही है। अरे माड़े बंदे का इनाम पहले मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि यूना कुकड़ी होता था हमारे मल्ले में। यूने कुकड़ी का ₹1,00,000 का इनाम निकला था। बलहोश हो गया था बेचारा। फिर उसको डॉक्टर शरीफ साहब के पास उठा के लेके गए। डॉक्टर साहब को बताया जाके कि डॉक्टर साहब यूना कुकड़ी बलहोश हो गया। तो डॉक्टर शरीफ साहब ने कहा था कि इसको देसी कुकड़ी की यखनी पिलाओ। यार वो खुद यूना कुकड़ी है, उसको कहां से दे? नहीं है तो वो सच इंसान सही कह रहा है। ये बहुत बड़ी मुखबरी है, तुम्हें पता ही नहीं, इसका अंदाजा नहीं। डिश 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 अगली मुखबरी भी जो है वो भी लोटों के मतलब ही है। ये जो लाहौर के अंदर पुलिस का ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है काफी बड़ा चूंग में, जी। इधर के जो मौजूदा प्रिंसिपल हैं DIG साहब अहमद मुबारक साहब, उन्होंने हिसाब किताब चेक किया तो तकरीबन करोड़ को रुपया आगे पीछे था। उन्होंने कहा कि यार ये करोड़ रुपया किधर गया है। ऑडिट वालों ने अगे पीछे हिसाब किताब सजे खबे करके तो कहा कि जनाबी अली ये जो करोड़ का है ना, क्या उसे कहते हैं, फर्क, ये को 2-3 DIG पीछे से ही आ रहा है। अच्छा। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने बताया जी कि फलां DIG साहब जब इधर प्रिंसिपल थे उनके दौर से जनाब ये करोड़ रुपया आगे पीछे हुआ है। अच्छा। लो जी मौजूदा जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने उन प्रिंसिपल साहब से फोन पर राब्ता किया। उन्होंने कहा भाई जी ये करोड़ रुपया आपके दौर में आगे पीछे है, यहाँ हिसाब किताब में रल नहीं रहा, ये आप फिर खुद ही जमा कराते हैं या इस पे फिर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए? बहुत अच्छा आदमी है वो, जो पिछला DIG था, उसने करोड़ रुपया जमा करा दिया। DIG ने करोड़ रुपया वापस कर दिया? DIG ने करोड़ रुपया दोबारा बोलो। DIG ने
एक दफा फिर यार ध्यान से सुना एक दफा फिर जरा, एक दफा इस तरह हैरान हो रहा है जैसे करोड़ रुपया डीआईजी के लिए बड़ी बड़ी रकम होती है। या तो तुम एसएचओ को तफा मारो तो उसकी उतनी जेब से करोड़ थले गिर जाता है। सजे खब्बे वाली जेब बनी है, मैंने तुम्हें बताया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। करना दोबारा जरा। अब ये देखना फिल्म 10-10 रुपए में मल्ले में बेचेगा। और उसमें जो लड्डू होते थे वो इतने सख्त होते थे कि लड़ाई के वक्त काम भी आ जाते थे। अच्छा यार भाजनैत, ये जो हम एक सेगमेंट करते हैं यादें माजी, जिसमें हम माजी की बातें याद कर करके जो खुश हो रहे होते हैं और अपने नायरीन को भी बता रहे होते हैं कि ये होता था किसी जमाने में, उसमें तुमने कभी ट्रांसपोर्ट का जिक्र नहीं किया कि ट्रांसपोर्ट कितनी ज्यादा बदल गई है। बिल्कुल ही अब ये जदीद जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया हुआ है, इसमें कई ट्रांसपोर्ट की चीजें गायब हो गई हैं और कई नई शामिल हो गई हैं। मसलन मेट्रो आ गई है। नई नस्ल को आज ये बात समझाना किस कदर मुश्किल काम है कि कुछ बरस पहले तक एक शहर से दूसरे शहर जाना कितना मुश्किल काम होता है। सारा दिन लग जाता था यार। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारा पिंड था सोदरा, वजीराबाद के बिल्कुल साथ है। मौलाना जफर अली खान साहब के साथ पिंड था हमारा। मैं एवं नहीं दानिश्वर। अच्छा यार, हंसा ना करो यार ऐसी बातों पे, टेक इट सीरियस प्लीज। मौलाना जफर अली खान साहब का हमसाया होना बड़ी बात होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बता रहा था कि हम गुजरांवाले से वजीराबाद तक पहुंचते पहुंचते सारा दिन लगा देते थे। घर से जब पैदल जाना अपना लारी अड्डे तक, फिर लारी अड्डे का वहां पे बैठ के इंतजार करना, और चंद लारियां होती थी। नहीं, बस से पहले एक मरला ये होता था कि कोई घर का एक फर्द टांगे को लेके आता था। अगर सालम टांगे पे आपने जाना होता था तो टांगे में आप बस के अड्डे तक पहुंचते थे। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग पैदल जाते थे। लारी अड्डा हमारे घर के से थोड़ा ही दूर था, ये जो अपना वजीराबाद जहाँ पे लारी जाती थी। और वैसे भी अब दूर लगता है, उस वक्त इतना सफर कोई दूर नहीं था होता, लोग बड़ा पैदल चलते थे। उधर से फिर बैठ के हमने वजीराबाद जाके उतरना, फिर उधर से उधर सियालकोट रोड वाले टांगे या लारी पे बैठना, उधर भी कितनी देर उड़ीकना, फिर सोदरे के मोड़ पे उतर के फिर पैदल संदूक अपना और टोकरी और पता नहीं क्या क्या उठा के मठियाई वाला डब्बा, मठियाई भी साथ लेके जानी पड़ती थी। और उसमें जो लड्डू होते थे वो इतने सख्त होते थे कि लड़ाई के वक्त काम भी आ जाते थे। डब्बा खोल के बंदा लड्डू खिंच के सीधा सिर में मारता था, सिर फाड़ जाता था, इतना ढाढ़ा लड्डू होता। ज़हन में सारी बातें लेके आओ ना। सड़कें उस वक्त कितनी टूटी फूटी हुआ करती थी, फिर हाय। बसों की हालत क्या होती थी। बस अक्सर ऐसे होती थी कि लग रहा होता था कि खब्बे हाथ को जा रही है, जा सीधी रही होती थी। कई बेचारे तो इस तरह का मुंह बना के बैठे होते थे कि यार इधर खींच के रखिए बस, बहुत ही नहीं इधर लटकी। इस तरह की बसें भी होती। और सड़क बिल्कुल सिंगल 8 फुट की होती थी। एक लारी जा रही होती थी तो आगे से अगर दूसरी लारी आ जाती थी तो ये लारी एहतरामन खड़ी हो जाती थी। दूर से ड्राइवर देख लेते थे कि किस लारी की उम्र ज्यादा है। या लारी की उम्र देखी जाती थी या ड्राइवर की उम्र देखी जाती थी। नहीं, लारी की उम्र ही देखते थे, ड्राइवर की उम्र नहीं थे देखते। बुजुर्ग लारी को गुजरने देते थे, कहीं हमारे साथ लग के खिलर ही न जाए सारी। बस के अंदर का मंजर क्या होता था? होए 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 होए, बस के अंदर सबसे पहले तो जरूर लिखा होता था कि सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसका मतलब यह है कि लारी में लाइमन जेब कतरा होता था। उसके अलावा फिर उस वक्त बच्चे भी बहुत होते थे। जब कोई फैमिली आती थी लारी पे चढ़ने के लिए, एक नाल बीवी, साथ खामंद और साथ 9 बच्चे, 11 बच्चे, 7 बच्चे, 9 बच्चे, 2 बकरियां, 1 मुर्गी। हाय हाय हाय। अच्छा बस कर। ये बड़ा अजीब हादसा होता था हर दूसरे सफर में कि एक अद्धा बच्चा या लारी अड्डे रह जाता था या टांगे में रह जाता था, या उधर जब वहां पे उतरते तो एक बच्चा तारना भूल जाता।
ये कई दफा ऐसे हादसात आते थे, फिर पीछे दौड़े लगती थी खामद की, और बीवी बेचारी तो उधर ही शुरू हो जाती थी, हाँ 7वें नंबर वाला रह गया तो अनुवादी रही जा गिन के लाओ, अबे कौन और किधर की आज मैं खोला दौड़ोगा। कई दफा ये भी होता था कि वो बच्चा पीछे से बुरका खींच के कहता था अम्मी मैं उतर गई, वो उतर गया होता था और पीछे खड़ा होता था। ये बड़ी मुखावल होते थे उसमें। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तौबा, आप लोग कितने पुराने हैं। इसने तो देखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है सब कुछ। यार ये खुद ही सुनाया करो अपनी बातें, मुझे हमें कह देता कि वो वाली बातें सुना। मुझे कहता था कि रांझे हमारा गांव छोड़ जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तख्त हजारे की नून लीग की टिकट ले देता हूँ। अच्छा। मैं नहीं माना, मैंने कहा मुझे हीर चाहिए, सीट नहीं चाहिए। मुठियारे जी, तू मेरी हीर ते नहीं देखी? नहीं। मेरी फिल्म भी नहीं देखी? कौन सी? टर्मिनेटर 2। और मैं हीर रांझे दा हीरो हाँ। हाँ, आप उस फिल्म के हीरो। देखिए फिल्म, देखिए। अल्लाह तेरी खैर करे तो ओदे च हीर नहीं सी देखी? फिल्म में देखी थी। ऐथे नहीं देखी? नहीं। पता नहीं मेरी हीर फिल्म चो निकल के किथे निकल गई। हीरे। राजा जी, आप यहाँ क्या करने आए? फुहारा ठीक करना है। और जवाना मैं रांझा वा ते मैं हीर ही लभनी है, मैं होर इथे की करन आना है। हीरे, ओ हीरे, पता नहीं किथे टुर गई है मेरी हीर। राजा जी, राजा जी। आप आज तक हीर को नहीं ढूंढ पाए? मेरे कोलों की पूछना है अंकरा, अपने दिल ते हाथ रख के सजे खबे निगाह मार के वेख, ना ओ हीरा रही ने ते ना ही ओ रांझे रहे ने, ते ना ही मुहब्बतां चो सच्चाइयां रही ने। जद मुहब्बत च सच्चाई नहीं रही ते हीर किथों लभनी? बात तो ठीक है। हाय हाय मुठियारे, जी। तू मेरी हीर वेखी है? नहीं। तू किथों हीर वेखनी है? तू ते न्यूज़ चैनल दी कुड़ी है। हीर नू ते सिर्फ एंटरटेनमेंट चैनल दियां कुड़ियां जानदियां ने। Oh my God. सीरियसली ढूंढ रहे हैं? इधर क्या ढूंढ रहे हो? हीर ढूंढ रहा हूं, और मैंने पौधों में से अमेरिकी सुंडी पकड़नी है। हीरे, ये ते चाचा बशीर है। मुठियारे जी। मेरी हीर वेखी हूं? नहीं। अपनी शक्ल वेखी हूं? कौन सा राजा? उससे क्यों लड़ रहे हो? भाई जी तुहानू की दसा, एहो जिहियां कुड़ियां ही ने ते हीर मेरे कोल दूर कीती है।
ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ नहीं हूँ। राजा जी, मुझे समझ नहीं आ रही आप यहाँ कैसे आन टपके। और दूसरी बात ये कि हमारे कौमी प्रोग्राम है, आप कौमी जबान उर्दू में बात करें। एग्जैक्टली। वेरी वेल सेड। हैं? उर्दू बोलूं मैं हीर ढूंढने आया हूँ या मिर्जा गालिब ढूंढने आया हूँ? हीरे 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 वीरे घर भी जाना कि सारा दिन इत्थे ही बैठा रहे? Don't know how to deal with him. What are you saying? यार तुम किस दौर के रांझे हो? मैं कोई पुराने दौर का रांझा नहीं, SMS दौर का रांझा हूँ। तो मैसेज करो और हीर ढूंढ लो अपनी। बैलेंस खत्म हुआ है, वरना मुझे क्या जरूरत है आप लोगों के साथ खज्जल खारी करने की। अच्छा राजा जी तशरीफ रखिए, आप जरा बैठे प्लीज, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। इत्मीनान मेरे नसीब में कहाँ। मुटियारे जी तू मेरी हीर ते नहीं वेखी? वो नहीं देखी भाई। वो इन्हू नजर भी आंदा कि अन्नी है। अच्छा राजा जी एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करेंगे? हुक्म करें जनाब, माइंड क्यों करना है? मैंने तो कैदों का माइंड नहीं किया, आप तो फिर पढ़े लिखे बंदे। अच्छा ये फरमाइए कि आप हीर की तलाश में उम्र गवा बैठे अपनी, कभी पछतावा नहीं हुआ? हीर सच का नाम है, सच मिल जाए तो फिर भी पछतावा नहीं होता, और अगर ना मिले तो फिर भी पछतावा नहीं होता। भावें हिजर ते भावें वसाल होवे, वक्खो वक्ख दुआं दियां लज्जतां ने। मैं सच ढूंढ रहा हूं, मिल जाए तो फिर भी ठीक है, ना मिले तो फिर भी पछतावा नहीं, मगर मैं ढूंढता रहूंगा। तो फिर आपको आज के दौर में सच मिल गया? मुझ बदनसीब को तो सच उस वक्त नहीं मिला जब कहीं कहीं सच मौजूद था। इस दौर की बात करते हो, अपने ही अंदर झांक के देखो सच है, बाहर झांक के देखो सच है, बाजारों में झांको, मोहल्लों में झांको, घरों में झांको, सियासत के ईवानों में झांको, बाजारों में झांको, गलियों में झांको, कहीं सच मौजूद रह गया है। अगर कहीं सच है ही नहीं तो रांझे को सच कहां से मिलेगा? कहते तो तुम सच हो, आज तो चलो सच नहीं है, लेकिन उस दौर में फिर तुम्हें हीर क्यों नहीं मिली? बस बाबूजी कैदो ले दे गया मुझे। क्यों? दीवार बन गया मेरे और हीर के दरमियान, लालच देता रहा मुझे। अच्छा मुझे कहता था कि रांझे हमारा गांव छोड़ जाओ, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तख्त हजारे की नून लीग की टिकट ले देता हूं। अच्छा मैं नहीं माना, मैंने कहा मुझे हीर चाहिए, सीट नहीं चाहिए। मुझे कहता रहा सियासत में आ जाओ, बड़े कामयाब होगे, तुम भैंसे चार लेते हो और बंदे भी चार लोगे। नाले मैंने कहा कि मैंने सियासत में नहीं आना, ये बेवफा लोगों का काम है। और रांझे ने तो सिर्फ 2 पराठे की चूरी खाई है और आज तक वफा निभाई है। सियासतदान तो अरबों की चोरी खा गए हैं मगर मुल्क से वफा नहीं करते। इसलिए मैंने सियासत में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कह तो तुम ठीक रहे हो यार। फिर मुझे बता दो खुदा के वास्ते, क्या? कहीं मेरी हीर देखी है? अब भाई मैंने नहीं देखी। और सियानी बियानी कुड़ी ने नहीं वेखी ते तू ते शक्लों ही बेवकूफ लगना। चाह न रोरी, तेरी मेहरबानी, मेरी बांसुरी बंद हो जाएगी। नाज़रीन ये सब कुछ था है नस्ब हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।